Hi everyone, welcome to Mission Economics. As we all know that PhD admissions have been started in almost all the universities. So I just thought to share a very useful video on how to crack the PhD interviews, especially the students who have cleared their written test have got a call for the personal interview. So this video is going to be very insightful for them on how to crack the interview and get a full-time seat in PhD in any of the universities. So let's get started. But before that, please do subscribe the channel because it takes a lot of effort in making a video, and I always try to bring some useful content for you. And the second reason is that we don't have a fixed time जब मैं आपके लिए videos लाती हूँ, तो whenever I do have time from my busy schedule, तब I try to come up with a useful video. So if you would have subscribed the channel, तो आपको notifications आती रहेंगे ऐसे useful videos के लिए. So let's get started now. Now, the very first thing when you are appearing for the personal interview in for PhD, so the very first point is you must know some related books as well as articles relating to your topic. Means that it is a very frequently asked question in the PhD interviews जो आपसे पूछा जाता है कि that have you read any book relating to your topic? Let's suppose if my topic is poverty. So have I read some useful books by renowned authors like there is a book on poverty by renowned author Abhijit Banerjee and Esther Duflo. So they will be definitely asking you that have you read that book or any paper, any good paper, quality research paper that you would have read and have some insightful conclusions out of that. ठीक है. So keep in mind कि आपका जो भी टॉपिक आप लेके जा रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए, आप उससे रिलेटिंग आपको बुक्स पता हो कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, किन किन ऑथर्स ने उस टॉपिक पे ऑलरेडी वर्क कर लिया है, कौन कौन से ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं उस एरिया में या बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उस एरिया में. Okay, the very first point. Now moving on to the second point is please take a brief idea of the professors working in the university. See, usually what happens is that we clear the written interview and we got a call for the personal interview and we go for personal interview without knowing anything. And trust me guys, this is a very useful tip that I am telling you, that you must have an idea of all the professors working in that university. वो idea आपको उसकी website से मिल जाएगा. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं हु आर करंटली वर्किंग और उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है. वाई आई एम आस्किंग दिस टू यू इज लेट्स सपोज यू हैव डिसाइडेड अ रिसर्च टॉपिक, ओके, बट आपका टॉपिक कुछ ज़्यादा यूनिक है और आपके जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसका कोई प्रोफेसर अवेलेबल ही नहीं है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में. सो जो आपके चांसेस होते हैं रिसर्च प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के, वो आपके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि लेट्स सपोज इफ आई वांट टू वर्क ऑन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स एंड देयर इज नो प्रोफेसर अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट हु इज वर्किंग ऑन द मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, देन दे विल बी हैविंग अ वेरी लेस इंटरेस्ट इन योर प्रपोजल. इवन आपका प्रपोजल अच्छा भी होगा तो फिर भी दे विल नॉट बी टेकिंग मच इंटरेस्ट इन दैट. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोज में ही बोलती हूँ कि रीड योर रिसर्च प्रपोजल वेरी केयरफुली. वट एवर यू आर राइटिंग इन योर रिसर्च प्रपोजल, इवन अ सिंगल वर्ड, इफ यू आर राइटिंग सस्टेनेबल, देन यू मस्ट बी नोइंग इट्स मीनिंग. अगर आप अपने रिसर्च प्रपोजल में कोई एक वर्ड यूज करें, कॉम्पिटिटिव, सस्टेनेबल, तो आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. वॉट एवर यू आर राइटिंग इन योर रिसर्च प्रपोजल, यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दोज थिंग्स. ओके, जो भी क्वेश्चंस किए जाते हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल में से ही पूछे जाते हैं, तो फिर बी क्लियर विद ईच एंड एवरी वर्ड. Don't forget to miss anything, right? If you are let's suppose if your research proposal is on poverty and you have used the word poverty line or poverty basket, then you must be knowing that what are these terms. ठीक है, सो दैट इससे क्या होता है कि प्रोफेसर्स जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दे हैव अ क्लैरिटी दैट आपको कितनी ज़्यादा अपने रिसर्च प्रपोजल की क्लैरिटी है. आपने कहीं से अपना रिसर्च प्रपोजल कॉपी तो नहीं किया, यू हैव मेड इट बाय योर सेल्फ. सो दिस इज देयर आइडिया. Now moving on to the fourth point is that data and methodology, very very important. See, what happens is that in some universities, like if you go to the Shiv Nadar University or you are going for IIT or somewhere else, then they would be asking you the right methodology, that what are you going to use in your research proposal. Sometimes they also ask you to write your complete model. Okay, they'll give you some time and they'll say that write your complete model. So you must be, if even if you are not able to write the complete model at that time, but you must have an idea कि आपका जो थोड़ा बहुत मेथोडोलॉजी है आप कौन सी यूज़ करने जा रहे हैं. ठीक है, और ये मेथोडोलॉजी आपको कहाँ से पता लगेगी? ये मेथोडोलॉजी यू विल गेट टू नो जब आप अपने एरिया से रिलेटेड
3 4 5 6 रिसर्च पेपर्स पढ़ के जाएंगे, right? And apart from research methodology, another thing is data sources. It is very very important, I guess. Even from methodology, data sources are more important, you know. बच्चे क्या होता है कि बच्चे टॉपिक चूज कर लेते हैं, दे डोंट नो कि डेटा कहाँ से मिलेगा या डेटा भी हमें लेना है, दे गो बाय थ्योरी, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। वॉट एवर टॉपिक यू आर चूजिंग, आप कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल चूज कर रहे हैं, आप ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गैदर द डेटा। देयर आर सो मैनी डेटा सोर्सेज, और हम अपने आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में डेटा सोर्सेज की बात भी करेंगे। बट बिफोर दैट, यू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, right? So after research methodology and data sources, fifth point is choose one subject of specialization, right? जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर्स की है, वेदर इट बी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आप एक ऐसा सब्जेक्ट अपना लेके जाएं जिसके ऊपर आप एक अच्छी आपकी कमांड हो, ताकि बाय चांस आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आप वो सब्जेक्ट बताएंगे और उसमें से क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। तो मेक श्योर कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट वही बताएं जिसमें आपकी एक अच्छी कमांड है, और उसको थोड़ा सा पढ़ के जाएं, तो अपने लिए एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाएं, राइट? सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, एंड द लास्ट 6th पॉइंट इज कि वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर योर इंटरव्यू, आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको वर्ड फॉर्मेट में अपना रिसर्च प्रपोजल तो बनाना ही है, ऑल्सो उसके साथ आपको एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेनी है अपने रिसर्च प्रपोजल की, जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डेटा सोर्सेज, एंड फाइनल कंक्लूजन विद सम रेफरेंसेज। आई हैव मेड अ कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू मेक योर रिसर्च प्रपोजल, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर योर वीडियो। आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू वेरी वेरी मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप बोल सकते हैं कि सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर राइट नाउ और एट द मोमेंट, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट और आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। ओके, so this is how you can go for your interview. All the very best for your interview, PhD interview. I hope you all get your seats for a full time PhD. So हमने इसमें इस वीडियो में हमने 7 पॉइंट्स की बात की। Let me just rewind all the points. The very first point is related books and research papers. Second point is please take a brief idea of the professor's CV or their area of specialization, right? Third point is read your research proposal very very carefully. Fourth point is data sources and methodology, and the fifth point is choose at least one subject of your specialization. Sixth one is make a PPT and presentation, and the last one, confidence is the key. So thank you very much. Don't forget to subscribe the channel and like the video. If you like it, then share it with your friends. All the best, happy learning, have a good day ahead.